everyone, welcome to weekly current affairs session. And if you're preparing for the MHBEd CET and want to improve your current affairs and static GK understanding, so this session will be very helpful for you because here we will discuss most important question from the last week and which will be very helpful for you. So just continue follow this series and improve your current affairs and static GK understanding. And one more important information, guys. And if you want to start your preparation under the guidance of the expert faculty, so you can join Maneuver program. So for offline program, you can visit our center, and these all are the number and location. So you can call on these number which is near to you. And if you are out of Mumbai and Maharashtra, so online is the best option for you. So for online, you can call on this number 705-888-6916. So for online program, you can call and you can discuss with our counselor. And if you want to join some other program like books, self-study program, mocks, so you can visit Maneuver website. Link is mentioned in the description, www.maneuveredu.com. So you just have to click on a link or just type www.maneuveredu.com. Okay, you just have to click here, just B.Ed entrance, and you will see this page and live self-study sectional mock test. So if you want to explore the program like self-study, so just click on it, and here is a view detail and view details page, and you can explore everything. It means what are the course content, so like video, ebook and mock test, so everything easily you can see. And then if you want to join, so you can proceed further. Okay. So these all are the other program which will be helpful for you like self-study mock test and for online and classroom program. So you can call on these number in case of any doubt and query. Okay, now let's start the question part. So now let's see all 15 most important golden question from this week, basically 18 to 24th August. So first question is here, what is the name of the mascot of Asia Cup Hockey 2025? So guys, अगर से किसी भी sports event का वेन्यू डिक्लेयर होता है, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का मैस्कट रिलीज होता है, सो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हाईली एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम के लिए. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट. सो जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट एज वेल एज वेन्यू. सो वीर, चांद, सेरा, ध्रुव. सो करेक्ट आंसर इज द चांद एंड इवेंट विल बी हेल्ड 12th. दिस इज द एडिशन 12th मेन एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 बिहार for the first time and Rajgir International Stadium. So Rajgir International Stadium में basically this event will be held, and Nitish Kumar unveiled the logo, mascot and trophy in Patna, and Chand is a mascot. So these all are the important information related to this sports event. So जितने भी important sports event होंगे recent के, just try to remember what is the mascot. अगर से final होता है तो winning team कौन सी है, runner team कौन सी है, तो ऐसे information expected होंगे exam के लिए. Exercise SEALNEX is a bilateral naval exercise between India and which country? So most important, basically this is the exercise, naval exercise. So one more thing, just try to note guys, अगर से ये वीडियो आप देख रहे हो तो सीरियस होके सारी चीजें लिखो. जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में आप 80 to 90% स्कोर इजिली कर लोगे विदाउट फॉलो द टू मच कंटेंट, क्योंकि इसके लिए लोग बहुत सारी चीजें स्टडी करने लगते हैं बट राइट स्ट्रेटजी नहीं होती है. सो मेरा सजेशन ही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री एक्सरसाइज इज हियर, सो जस्ट लास्ट 6 मंथ बिफोर योर एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल जिस भी मंथ में आपका एग्जाम है तो बिफोर 6 मंथ में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है, उनको अच्छे से स्टडी कर लो जो इंडिया एंड अदर कंट्री के बिटवीन हो, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवल हो, वॉट एवर. सो लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम. सो हियर SEALNEX, तो आप इस नाम से भी चाहो तो आइडेंटिफाई कर सकते हो. SL एंड इन इट मींस श्रीलंका, इंडिया एंड एक्सरसाइज, EX इट मींस एक्सरसाइज. सो इस तरह से आप इजिली रिमेंबर कर सकते हो श्रीलंका. ओके, सो नेवल एक्सरसाइज है INS राणा एंड INS ज्योति टुक पार्ट इन द 12th एडिशन. सम टाइम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए इट मे बी आस्क कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ इट. तो कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए एज अ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू. Mount Elbrus that was recently seen in the news is located in which country? Most important question I can say, because for sure you will see the question in your exam related to geography, जिसमें से रिवर, माउंटेन, डैम, नेशनल, इंडिया के या फिर वर्ल्ड के, कोई भी आपको वर्ल्ड का वेल नोन रिवर पूछा जा सकता है, वेल नोन माउंटेन से रिलेट करके इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है. सो ऐसे ही नहीं पूछेगा बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन. If any mountain, any river, any dam is a part of news, so then examiner will ask where is it, क्या है, कौन सा सबसे टॉप का है, हाइट में है, सबसे
लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर है, इफ दैट रिवर इज अ पार्ट ऑफ न्यूज। ठीक है, सो यहां पे देखो एक बिकॉज ऑफ वन न्यूज माउंट एल्ब्रस इज अ पार्ट ऑफ न्यूज। सो Kabak Yano is a mountaineer from Arunachal Pradesh successfully climbed the Mount Elbrus, that highest peak in Europe। ठीक है, सो यूरोप का हाईएस्ट पीक जो माउंटेन है माउंट एल्ब्रस। अगर से हम एशिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगर से मैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात करूं, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर हियर टू थिंग्स। अगर से हाईएस्ट की बात होगी तो हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात होगी तो माउंट एवरेस्ट है, बट अगर से लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात हो रही है सो it's in South America, which is known as the Andes mountain range। Andes mountain range is what? Longest mountain range। अगर से highest mountain range की बात होगी तो Mount Everest। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ जो 7 कॉन्टिनेंट है उसके हाईएस्ट पीक का इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड रिमेंबर रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किलिमंजारो बहुत बार पूछा जाता है, जो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है किलिमंजारो, बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है, क्योंकि वो बहुत बार रिसेंटली अगर से न्यूज में है तो एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द यूरेनस न्यूली डिस्कवर्ड 29th मून in 2025। देखो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग द ज्योग्राफी का सबसे फेवरेट टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू निक नेम अबाउट द अर्थ, मार्स एंड अदर प्लैनेट, उनसे रिलेट करके किसके पास सबसे हाईएस्ट मून है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एज पर द रिसेंट रिसर्च जो सैटर्न है उसके पास सबसे हाईएस्ट मून है 145 आई थिंक समथिंग। तो इस तरह के जो भी न्यूली रिसर्च होते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूज, सो सोलर सिस्टम विच इज वेरी फेवरेट टॉपिक फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन, यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। तो अब देखो यहाँ पे जैसे बिकॉज ऑफ दिस रीजन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूज, आपसे इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज द नेम ऑफ दिस न्यू मून। न्यू मून इट मीन्स व्हाट? नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के पास जैसे कितने नेचुरल सैटेलाइट है? ओनली वन सैटेलाइट विच इज कॉल्ड व्हाट? मून। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्लैनेट के पास कितने हैं? 29th नेचुरल सैटेलाइट है, राइट। सो एज पर द रिसेंट डिस्कवर, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये डिस्कवर किया है। सो रिमेंबर रखो, रिसेंट डिस्कवर, रिसेंट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड होता है। हु विल लीड इंडिया इन द 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट इन अबू धाबी एंड दुबई फ्रॉम September 9 to 28, 2025? So one important information is what? कि just remember where it will be held. So अबू धाबी एंड दुबई में ये टूर्नामेंट होने वाला है, एशिया कप T20। एंड फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू विल सी, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु विल लीड इंडियन टीम? सो सूर्य कुमार यादव। ओके, जस्ट रिमेंबर टू इंफॉर्मेशन, हु विल लीड इंडिया एज वेल एज व्हाट इज द वेन्यू। आफ्टर दैट इस टूर्नामेंट में जो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड बनता है स्पेसिफिकली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, सो आपको अपडेट रखना पड़ेगा, जो कि 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो आने वाले वीक में वी विल डिस्कस अबाउट इट। बाय द वे, अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन आप रिमेंबर रखो। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई विजिटेड इंडिया अगस्त 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस विच इवेंट? सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 5-6 ईयर के बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया है। So as a important personality point of view, this question is very important. So यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन करूंगा आप लोगों के लिए, एक सेक्शन होता है important personality in a news। करंट अफेयर्स का एक सेक्शन है important personality in a news। So if any ministers, foreign ministers, prime ministers, if Indian ministers visit any foreign country, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री का कोई मिनिस्टर्स एंड हाईएस्ट पर्सनालिटी है, प्रेसिडेंट है या फिर चांसलर है, कोई भी इंडिया विजिट करता है, so such type of information, such type of current affairs is a part of what? Important personality in a news। so उसको आपको अपडेट करके रखना है। so as per this news, यहाँ पे देखो गुलवान वैली में जो हुआ था 2020 का जो क्लैश हुआ था, तो उसके बाद से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम विजिट किया आफ्टर द 5 ईयर के बाद। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर हु इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। सो वांग ही यहाँ पे आप रिमेंबर रखोगे, सम टाइम ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। सो इस वे में आप इंफॉर्मेशन को ट्राई करो अपडेट करने का। हु हैज बीन अनाउंस द एनडीए कैंडिडेट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025? सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्टैटिक पार्ट, जो इस सीरीज का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही है आपको अवेयर कराना कि करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे कि आपको इस सेक्शन में, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन में स्कोर करना बेटर हो, मिनिमम रिसोर्स को फॉलो करके। सो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रिमेंबर रखना ही है
बट नोट कर लो वाइस प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसका इम्पीचमेंट कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो वहां पे आप देखोगे राज्यसभा में जो स्पीकर वाला पोस्ट होता है ना, जैसे लोकसभा में यहाँ पे जैसे ये सारे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं ना, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा में जो ये पोस्ट होती है इसको बोलते हैं स्पीकर, बट जो राज्यसभा में ये पोस्ट होती है उसको बोलते हैं चेयरमैन। सो बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिसियो जो भी प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया। सो मेरा सजेशन है कि आप वाइस प्रेसिडेंट से रिलेट करके वॉट एवर इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके से आप अच्छे से अपडेट रखो। आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम्स होंगे आपके जो भी एग्जाम अपीयर करने वाले उसमें हाईली एक्सपेक्टेड चांस है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेट करके स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा। बाय द वे करेक्ट आंसर इज सीपी राधाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर, जस्ट रिमेंबर रखो। एंड मोस्टली आई थिंक विन भी कर लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट पार्टी के विन कैंडिडेट है। विल सी क्या होता है 9 सितंबर के बाद, इलेक्शन के बाद। ओके, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ओन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एज पर द स्पोर्ट पर्सनालिटी जस्ट ट्राई टू रिमेंबर पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सनालिटी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, और एज अ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन से टूर्नामेंट को इन्होंने बेसिकली ओन किया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देविका सिहाग, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में बैडमिंटन प्लेयर ही ओन द वुमेन सिंगल टाइटल। सिंगल टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मेंस कैटेगरी का हो या वुमेन कैटेगरी का हो, इंडियन पर्सन है तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Crown the Miss Universe India 2025. This is the also most important questions. All questions are guys very golden question. एकदम फिल्टर करके सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जो हाईली एंड हाईली एक्सपेक्टेड हो। सो मनिका विश्वकर्मा, सुस्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज चंदू. So what is the name of the person and basically she will participate in Miss World पेजेंट जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रिसेंटली सी क्राउन एज अ मिस यूनिवर्स इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज वाज मनिका विश्वकर्मा, हियर यू कैन सी। एंड अबाउट द अदर person like Susmita Sen, Lara Datta and Harnaaz Sandhu, this is also very important. Harnaaz Sandhu से रिलेट करके 2023, 2024, 2021 मैंने तीनों साल एग्जाम्स अलग अलग एग्जाम में देखा था, क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये सब जो ब्यूटी पैजेंट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, स्पेसिफिकली इफ इट इज रिलेटेड टू इंडियन पर्सनालिटी, इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूज, सो आपको रिमेंबर करना है गाइस। ओके, नेक्स्ट है वेटरन एक्टर अच्युत पोद्दार नोन फॉर द 3 Idiots. Died at 91. Which iconic line did Achyut Poddar deliver in the movie 3 Idiots? So basically this question is from the art and culture because movie से relate करके है, but recently this person passed away. So obituary section से भी काफी important हो जाता है। 3 Idiots is a well known movie. So यहाँ पे एक simple सा आप remember रखो कि किस line के लिए basically ये famous थे, as well as also you have to remember one thing, he was a well known actor. He was a well-known actor. आपसे क्वेश्चन पूछेगा अच्युत पोद्दार इज वेल नोन एक्टर, सिंगर एंड म्यूजिशियन, इस तरह से 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो इफ यू आर नॉट अवेयर सो प्रॉब्लम हो सकती है। बाय द वे अगर से आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, इस इमेज को देख रहे हो, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि आप एटलीस्ट हर चीज को बाय हार्ट ना करो, चीजों को समझ के अंडरस्टैंड करना सीखो, ठीक है। सो अरे क्या कहना चाहते हो, यही था ना लाइन जो वेल नोन उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासरूम का, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर अच्युत पोद्दार वाज अ वेल नोन एक्टर। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 113 अमेंडमेंट बिल? सो दिस इज द अमेंडमेंट बिल, राइट। सो अभी ये एक्ट नहीं बना, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है। सो बेसिकली दिस 130 The amendment bill is related to what? किस चीज से रिलेट करके? एंड माई सजेशन विल बी गाइज, आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू न्यूज में रहने वाला है, तो इससे रिलेट करके जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो आप बहुत अच्छे से पढ़ो। आप इंग्लिश के लिए पढ़ते हो तब भी पढ़ो, इफ यू आर रेडी फॉर द करंट अफेयर्स तो उसको डिटेल में आप अच्छे से स्टडी करो। सो काफी बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर आफ्टर 30 डेज ऑफ डिटेंशन, ठीक है। अगर किसी को 30 डेज कोई जेल में रह लेता है तो ऑटोमेटिक वो अपने पोस्ट से डिसमिस हो जाएगा। जो भी रिसेंट केस देखने को मिला था अरविंद केजरीवाल का, वो जेल में रह के गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहे थे, तो उसी प्रॉब्लम को देख करके यहाँ पे होम मिनिस्टर ने ये बिल
इंट्रोड्यूस किया है। बाय द वे, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप कमेंट में मेंशन करो, सो आई कैन सी कि कितने लोग बहुत सीरियस इस सेशन को देखते हैं। सो आई वांट टू सी कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है रिलेटेड टू दिस बिल। आप अच्छे से शेयर करो। अगर से आप आर्टिकल रीड करते हो न्यूज़पेपर के, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा सा कमेंट फ्रेम करो, जिससे पता चले कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। ओके, आई वांट टू सी द जेन्यून कमेंट और एक सिंसियरली जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो you can post your comment here for this news. Okay, who won the India's first gold medal at under 20 World Wrestling Championship 2025? So again gold medal से relate करके हैं। So कोई भी sport personality हो इंडिया का किसी भी sports में, if he is a winner of gold medalist top पे है, so possibility है उससे question expect होगा एग्जाम में। So related to which sport, ये remember रखो, किस कैटेगरी में किस टूर्नामेंट में बेसिकली गोल्ड मेडल विन किया है वो आपको रिमेंबर रखना है। सो रिसेंट के जो भी स्पोर्ट पर्सनालिटी होंगे दे ऑल आर expected and important. So Tapasya won the India's first gold at under 20 World Wrestling Championship 2025 in Bulgaria in the 57 category of defeating the Felicet Domzova 5-2. So just remember the name of her, and she is a well-known wrestler. Next one, who is the author of MS Swaminathan, the man who fed India? Very important guys. अगर कुछ नहीं एग्जाम में पूछा तो बुक्स एंड राइटर से पूछ लेगा, अदरवाइज आपको इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन से रिलेट करके पूछ लेगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन इट्स रिलेटेड टू व्हाट, व्हाइट रिवोल्यूशंस, येलो रिवोल्यूशंस, ब्लैक रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन। नोट कर लो, ये जो 8 to 10 इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है ये हर साल एग्जाम में आते हैं। तो ये, और हु इज अ फादर ऑफ द पर्टिकुलर रिवोल्यूशन, एंड particular revolution is related to what? For example, milk revolution, जैसे मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करके क्या है, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं या फिर व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। ऐसे ही ब्लैक रिवोल्यूशन इट्स रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू पेट्रोलियम से रिलेट करके। ऐसे ही इफ आई विल टॉक अबाउट लाइक गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, इट्स रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन, ठीक है। ब्लू रिवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इंडिया का फीस प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हुआ है, तो मे बी पॉसिबल कि आपसे पूछ सकता है कि ब्लू रिवोल्यूशन इट्स रिलेटेड टू व्हाट। सो एम एस स्वामीनाथन इज अ वेरी फेमस, बेसिकली इज अ फेमस फॉर व्हाट यू कैन से फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन। सो यहाँ पे जो न्यूज में है बिकॉज ऑफ बुक, यहाँ पे एक पर्सन है जो अथर है, इन्होंने बुक लिखी है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द अथर। सो एज अ बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट मे बी कि इकोनॉमी सेक्शन से आपसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। सो प्रियंबदा जयशंकर जस्ट रिमेंबर रखो, एंड शी इज द ऑथर ऑफ दिस बुक एंड अबाउट द MS स्वामीनाथन। सो इकोनॉमिक सेक्शन से ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन, व्हाइट रिवोल्यूशन के जो फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है वर्गीस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड जिसको बोलते हैं, ये बहुत important and expected है। Which company held the top position in 2025 global brand list? So most important question from the business GK, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia. So correct answer is guys on a top, it's Microsoft. So 19th China brand festival held Xinjiang August 7 1125, and AI and global expansion. So top brand Microsoft, Nvidia and Apple are in the top 3 here you can see। ओके, सो एज अ बिजनेस जी के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेट करके, और भी इंफॉर्मेशन, स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो आप अपडेट कर सकते हो। वेयर वाज द अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर? सो रिलेटेड टू DRDO, इसरो, वट एवर, अगर कोई भी सक्सेसफुली टेस्ट होता है, कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है, कोई भी स्पेस मिशन है, सो कोई भी डिफेंस से रिलेट करके चीजें न्यूज में है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड होगा। सो पोखरन, चांदीपुर, लद्दाख, जैसलमेर, सो from where this successful test was conducted? So correct answer is a Chandipur। Okay guys, so these are the important questions for your exam, so hope so these questions will be helpful for you, and if these questions are helpful for you to improve your current affairs and static GK, so please like the video, and for the further update and strategic video ke liye just subscribe the channel, and if you have any additional doubts, so you can ask in a comment। Okay, so that's it in this week. See you in next week with latest current affairs. Till the time, just revise and practice guys। Jai Hind।